الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وأمہاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم پریس کے بھائیوں اور عزیز دوستوں اور ذمہ داران جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، اس عنوان کے تحت آل انڈیا لیول پر اس پروگرام کو 10 دن کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس کو کون ہے، کیا نام ہے، کیا کام کرتے، یہ ساری چیزیں ہم بھول چکے ہیں۔ انفرادی طور پر اپنے انداز سے اپنی زندگی میں ماہو ہیں۔ اسی غرض کو سامنے رکھتے ہوئے آپس میں محبت اور ان کو پروان چڑھانے کے لیے اور لوگوں کو حق سے آگاہ کرنے کے لیے اس مہم کو رکھا گیا ہے۔ یہ 10 دن کی جو مہم ہے، اس مہم کے اندر بچوں کو اور خواتین کو، ایس آئی او اور سی آئی او کو، اس کو بھی شامل کیا گیا ہے، خواتین کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور یہ سب مل کر یہ کام کر رہے ہیں، جس میں نعت ہے، ویڈیو ہے، تقاریر ہے، مضامین نگاری ہے اور واقعات ہے۔ یہ ساری چیزیں اس غرض کے لیے رکھا گیا ہے کہ یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رات میں ہم کھا کر آرام سے سو چکے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا ہے، تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات بولی جا رہی ہے اور ہمارا حال آج کیا ہے؟ اسی طریقے سے بتا رہے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا پڑوسی ہم سے ناراض اور یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے جو پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ ویسے تو اسلام کے اندر اللہ کے حقوق ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خیرات وغیرہ، یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں۔ لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں، اللہ کے حقوق معاف ہو سکتے ہیں توبہ کرنے پر، لیکن بندوں کے حقوق معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص وہ صحابی ہیں وقت کے اور موت کا وقت آ گیا رکھتے کے اندر ہے وہ، تو ان کے والدہ کو پوچھا جاتا ہے تمہارے لڑکے سے تمہارے کیا تعلق، کیسے تھے؟ میرے سے بہت اچھے تھے، کھانا پینا کپڑا لتا ہر چیز میرے سے اچھی تھی، لیکن ایک تکلیف دینے والی بات نہیں یہ تھی کہ بیوی کی بات کو مانتا تھا، میری بات کو نظر انداز کرتا، میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو معاف کر دو، تو کہتی کہ میں معاف نہیں کرتی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں لکڑے لاؤ اور جماؤ اور اس کے پر سلا کے جلا دو زندہ، تو کیا میرے بیٹے زندہ جلا دیتے ہیں؟ ہاں زندہ جلا، جہنم میں ہمیں کیا جلتا ہے تو یہاں پر زندہ جلایا جائے گا۔ تو میں اپنے دل و جان سے میرے بیٹے کے غلطیوں کو معاف کر دی، تو جب ان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، وقت کے صحابی ہیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، کسی ایک کی پیروی کر لو تم کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ بات بتائی گئی۔ لیکن بندوں کے حقوق یہ ہیں، ماں باپ کو ایک نظر محبت بھری نظر سے صرف دیکھنا، ایک مقبول حج کے برابر ثواب۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ دیکھیں روزانہ 100 مرتبہ ہم ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھیں تو 100 مقبول ہے، 1000 مرتبہ دیکھیں گے تو 1000 مقبول ہے۔ کہ بندوں کے حقوق ہیں معاف ہونے والے نہیں۔ اسی طریقے سے پڑوسیوں کے بھی جو حقوق ہیں، ہمارے پڑوسیوں کے بارے میں ہم جاننا چاہیے، ہمارے پڑوس میں جو کتنا پریشان ہے، کس بیماری میں مقبل ہے، اس کی دسترسی کرنا چاہیے، اسے ملنا چاہیے اور اس سے جتنی ہو سکتی ہے ہم اس کی مدد کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں کو نظر میں رکھتے ہوئے جماعت اسلامی ہند نے یہ مکمل 10 دن کا پروگرام رکھی ہے اور اس کو کنٹینیوشن رکھنے کا حکم دی ہے۔
کہ कुछ 10 दिन करके छोड़ देना नहीं है, बल्कि इसको साथ ही साथ कंटिन्यूएशन इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलना है। और उसी तरीके से पड़ोसियों के हुकूक तफरीक मुलाकातें, उनसे खाने खिलाने के लिए, चाय वगैरह के लिए बुलाने के लिए, उनका काम का इंतजाम करके उनके मसाइल के अहम मसाइल को करके हल करने की भी कोशिश करना चाहिए। ये 10 दिन के अंदर एक दिन ये भी काम है। और जो हमारे बरादरान वतन, जिनको गैर मुस्लिम कहते हैं हम, ऐसे लोगों से भी मुलाकातें करना है हमको। इनके लिए तेलुगु में पम्पलेट लाए हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में है, उर्दू में है। उन तक पहुँचना है, उनको कुछ तोहफे देना है और फिर उसके साथ ही साथ उनके मसाइल का हल भी पूछना है। तो ये हम करते रहेंगे तो आपस में मोहब्बत और उल्फत भर जाएगी। ये फितना और फसाद ऐसे नहीं होंगे, जुल्म और ज़्यादती नहीं होगी। अल्लाह ताला यही चाहता है कि उसका कुंबा है, सारी दुनिया के उसका कुंबा है, कुंबे में किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। जिस तरीके से हम उनको मुसलमान बनाया है और हमको कुछ अहकामात दिया है, इन अहकामात पर अमल पैरा होने से हम जन्नत के मुस्ताहिक हो जाते हैं। उसी तरीके से हम पर ये जिम्मेदारी डाली गई है उन तक दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाए, उन तक दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हम पर डाली गई है, क्योंकि वो भी जहन्नुम में है, सब जन्नत के मुस्ताहिक बन जाए। इसीलिए अल्लाह ताला ने तौबा करने से, जब कभी भी तौबा की जाती है, पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। तरीके से एक दिन खवातीन का दिन रखा जाए, तो खवातीन से, गैर मुस्लिम खवातीन से, तमाम खवातीन से मुलाकातें करने के। वैसे तो हर रोज़ ये प्रोग्राम है, लेकिन स्पेशल तौर पर खवातीन का दिन मनाते हुए उसको खवातीन को जो बड़ी तर्ज दी गई है, तो उसके तहत भी उनके ज़रिए से भी इस पैगाम को आम करने की कोशिश की जा रही है। और एक दिन नौजवानों का रखकर नौजवानों के लिए भी ये काम करने में, नौजवानों के अंदर काम करने के लिए भी रखा गया है। तो ये इसी तरीके से इस प्रोग्राम को 21 से लेकर 30 तारीख तक जो 10 दिन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए से अवेयरनेस लाना चाहते हैं, लोगों में शऊर पैदा करना चाहते हैं और ख़ुद भी अमल करना चाहते हैं और दूसरों को भी अमल की तरफ मुतवज्जे करना चाहते हैं। यही गरज है, इसके सिवा और कुछ नहीं है कि दुनिया के अंदर फितना और फसाद मिट जाए। आपसी मोहब्बत और दोस्ती होने के नतीजे में फितना फसाद ख़त्म हो जाता है। इसी गरज के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने, सोचने, समझने और उसके मुताबिक अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और प्रेस का इसके अंदर बहुत बड़ा है, क्योंकि हर तरीके से प्रेस के ज़रिए से ही हक़ और बातिल को खोल कर रखा जाता है। हक़ क्या है, बातिल क्या है, ये प्रेस के हाथ में है। बातिल को हक़ बताना भी उनके हाथ में है और हक़ को बातिल बनाना भी उनके हाथ में है। तो लिहाजा हम हक़ाइक़ को हक़ बताएं और बातिल को बातिल बताएं, और जिसके अंदर मुल्क के अंदर अमन और अमान कायम करने के लिए अपना जितना हो सकता है काम हम करने की हम कोशिश करें। तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसको जो ख़वातीन को जो बड़ी तर्ज दी गई है, तो उसके तहत भी उनके ज़रिए से भी इस पैगाम को आम करने की कोशिश की जा रही है। और एक दिन नौजवानों का रखकर नौजवानों के लिए भी ये काम करने में, नौजवानों के अंदर काम करने के लिए भी रखा गया है। तो ये इसी तरीके से इस प्रोग्राम को 21 से लेकर 30 तारीख तक जो 10 दिन का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम करना चाहते हैं। यही गरज है, इसके सिवा और कुछ नहीं है कि दुनिया के अंदर फितना और फसाद मिट जाए, के नतीजे में फितना फसाद खत्म हो जाता है। इसी गरज के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र करने, इसके अंदर बहुत बड़ा प्रेस के जरिए से ही हम साया पड़ोसियों के। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जमात मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ फरमानात के तहत मुहिम्मात मनाते रहती है। इसका मकसद ये होता है कि सारी तमाम तर तवानाई पूरी वाबस्तगान जमात के किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करके उसके जरिए से समाज के अंदर शऊर बेदार करना, उनको इस बात का एहसास दिलाना कि पड़ोसियों के हुकूक क्या है। कुरान मजीद में तफसील से इसके आयात आई हैं, अहादीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीलात बयान की हैं। तो उसी को सामने रख करके इन 10 दिनों के लिए प्रोग्राम तय किया गया है। उस प्रोग्राम में जुमा से इसका आगाज हो रहा है। 21 नवंबर से जुमा के दिन जो है ना खुतबा जुमा की तकसीम है।
मसाजिद के सारे मसाजिद जितने शहर में मौजूद हैं उन लोगों तक खुतबात इसके स्पेशल खुसूसी खुतबात बने हैं उसको प्रिंट करके उसका जेरॉक्स करा के दिया जा रहा है और फिर डिजिटल पोस्टर्स का भी इंतजाम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 डिजिटल पोस्टर्स बने हैं हदीस की शक्ल में जिसमें जामे अंदाज में पड़ोसियों का हुकूक बताया गया। फिर इसी तरह से 22 तारीख को हफ्ते के दिन ये मुकाबलों का दिन है मर्द और खवातीन का एसआईओ जीआईओ के जरिए से सोशल मीडिया पर भी पोस्टर्स वगैरह और खास तौर से इन प्रोग्राम्स को मनाया जाएगा। और फिर इसी तरह से 23, 24, 25 और 26 ये 4 दिन मुसलसिल पूरे वाबस्ता गाने जमात को इस बात की हिदायत दी गई है कि वो अपने पड़ोसियों से खास तौर से मुलाकात करें। तारुफ से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ बात करें बल्कि पड़ोसियों के यहाँ जाएं उनसे मुलाकात करें बैठें गुफ्तगू करें। भाई मेरे से आपकी जात को कोई तकलीफ है मेरे से कोई आपको नुकसान है या ये कि मेरे अंदर कोई खामी है या ये कि पड़ोसियों के ताल्लुकात को बिल्डअप करने के लिए हम सब मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। इस अंदाज में मुसलसिल मुलाकातें करना चाहिए पूरे अपने महल्ले में मुलाकात करें। फिर इस मुलाकात के दौरान अगर बरादरान वतन होंगे तो बरादरान वतन से भी मुलाकात करेंगे। बरादरान वतन के लिए खास तौर से मंसूबा बनाया गया है कुछ फ्रूट्स लेकर के फ्रूट्स की शक्ल में हल्के कुछ किताबचे फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे या उनके घर पे जाके मिलेंगे या अगर अच्छे ताल्लुकात है तो अपने मकान पर बुला के बैठेंगे तफसील से गुफ्तगू हो ये बात सामने आएंगे इस्लाम में हमसाये के हुकूक क्या है नेबर्स राइट्स क्या है इस्लाम क्या देता है। क्योंकि आज के मादा परस्त दौर में आदमी को अपनी जात के अलावा किसी और से कोई बहस नहीं है। इसी की वजह से समाज में दूरियां पैदा हो रही इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की चीजें पैदा हो रही। तो ये एक ऐसा मौका है जिसके जरिए से इसको दूर किया जा सकता है इस्लाम का सही पैगाम उनके सामने पहुंचाया जा सकता है। तो इस तरह से 4 दिन मुसलसिल ये काम किया जाएगा। फिर 27 नवंबर के दिन जुमेरात के दिन जुमे खवातीन हैं और इत्तेफाक से उस दिन जो है ना वर्ल्ड वुमेन डे है तो उस मुनासिबत से उस दिन का इंतखाब किया गया है कि खवातीन में ये शऊर को कैसे बेदार किया जाए। आमतौर से खवातीन के पड़ोसी से ताल्लुकात बहुत कम होते हैं हमारे अपने माशरे के अंदर तो उन्हें भी इस बात का शऊर दिलाया जाए कि वो खवातीन के रेंज में भी इस शऊर को बेदार करने की कोशिश करें। इसके लिए एनजीओ हो सकते हैं एनजीओ से तालमेल करेंगे ताउन लेंगे ताउन देंगे। बहरहाल एक बड़े लेवल पर इस मैसेज को खवातीन के अंदर भी आम करने की कोशिश की जाएगी। फिर इसी तरह से दूसरा खुतबा होगा 28 तारीख के दिन ये खुतबा तकसीम किया जाएगा अइम्मा को मसाजिद में सुनाने के लिए और जमात के जो मराकिज़ हैं वहां से इसी उन्वान पर खुतबा दिया जाएगा। फिर उसके बाद 22 तारीख को नौजवानों का दिन है खास तौर से नौजवान क्योंकि किसी भी माशरे की एक ताकत होती है रीढ़ की हड्डी होती है इनकलाब का एक जरिया होता है। पैगाम पे फोकस किया गया कि 29 तारीख को नौजवानों का दिन मनाएंगे और उनके सिलसिले में रैलियां निकाली जा सकती हैं और खास तौर से सड़कों पे जो हुकूक आम तौर पे हमारे यहाँ जिस तरह से मिसाल के तौर पे गाड़ियों की पार्किंग है इस तरह से हम करते हैं कि दूसरों के लिए तकलीफ दे होता है तो हर वो काम जिससे पड़ोसी को तकलीफ होती है वो तकलीफ उन्हें नहीं देना चाहिए। सलीके के साथ इस्लाम जो पैगाम हमें देता है उसका अमली मुजाहरा करने की मुसलसिल ये कोशिश की जाएगी। फिर महलों में सफाई का काम भी होगा अवामी मीटिंग्स भी होंगे सकाफती काम भी होगा डिजिटल के जरिए से। बहरहाल जितने अगराज और मकासद जितने जराए वसाइल है इन सब को एकजा करके पूरी ताकत के साथ इस मुहिम को हुकूक हमसाया की मुहिम को सारे लोगों में आम करने के लिए फोकस किया जाएगा। और 30 तारीख को आखिरी दिन है इसमें खास तौर से वतनी भाइयों और बहनों के लिए खुसूसी दिन होगा। इसके अलावा मुहिम के दौरान में भी मुसलसिल इनसे मुलाकात होते रहेंगे। गर्ज है कि जमात इस्लामी मरकज और हल्के की जानिब से ये हिदायत आई है बाज़ाब्ता गाइडलाइंस की शक्ल में और मकामी जमात ने भी पूरा मंसूबा बनाया है और कैडर में इसका कन्वेंशन रखा गया है अलर्ट किया गया है। किसी कीमत पर भी पूरी सलाहियतों के साथ इन 10 दिनों में हम कम से कम हर आदमी अपने अपने महल्ले की सतह पे ये काम करेगा तो मजमूई तौर पे पूरे शहर की सतह पर इस्लाम का हुकूक हमसाये के जो राइट्स है इसे आम करने की कोशिश की जा सके ताकि इसके जरिए से लोग एक दूसरे के हुकूक की अदा करेंगे
और इस्लाम का पैगाम भी आम करने की सहूलत बनेगी और समाज की जो दूरियां हैं उन दूरियों को भी करीब करने का एक अहम जरिया बन सकता है। आप सभी हजरात से, खास तौर से हमारे मीडिया के भाइयों से गुजारिश है कि टाइम टेबल आप हजरात के सामने है, इसमें आप हजरात ताउन करें, ज्यादा से ज्यादा कवरेज दें ताकि ज्यादा लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाने की हम कोशिश कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी मदद फरमाए और सलीके के साथ ये काम करने की ज़राए वसाइल और तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल జమాతే ఇస్లామీ హింద్ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశమంతటా పొరుగువారు వారి ఆదర్శ సమాజం అనే అంశం పైన ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన పాత్రికేయులకి మరియు అదేవిధంగా ఛానల్ వాళ్ళకి మరియు ఈ సమావేశంలో విచ్చేసిన కుల ప్రముఖులందరికీ మా యొక్క శుభాభినందనలు. ఈ యొక్క పొరుగువారి యొక్క ప్రాముఖ్యత మరియు సమాజం యొక్క ఆదర్శ సమాజ నిర్మాణము, ఆ ఆదర్శ సమాజ నిర్మాణం ఎలా ఉండాలి అనే వాటిని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి మొట్టమొదట మనం దైవం ఎవరైతే మనల్ని సృష్టించాడో ఆ దైవం యొక్క విధిని, ధర్మాన్ని మనం ఆలోచించినట్లయితే దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత మనకు తెలిసి వస్తుంది. అదేమిటి, మనము ఈ సృష్టి యొక్క నిర్మాణాన్ని చూసినట్లయితే ఈ సృష్టి నిర్మాణంలో ప్రతి ఒక్క అంశము మానవులకు, జీవరాశులకు అనువుగా శాంతియుతంగా జీవించడానికి సకల ఏర్పాట్లు చేసిన ఆ దైవం మానవులు కూడా తమ యొక్క జీవితంలో సుఖశాంతులతో, సోదరభావంతో జీవించడానికి కావలసిన నియమాలు, ధర్మాలు మనకు ప్రసాదించాడు. దానికి మొట్టమొదట దైవం వ్యక్తి యొక్క నిర్మాణం కొరకు ప్రాముఖ్యతనిచ్చాడు. ఆ వ్యక్తి నిర్మాణంలో భాగంగా ఒక మానవుడు ఇంకో మానవుడితో ఎలా మెలగాలి, శాంతియుతంగా ఎలా జీవించాలి అనే అంశాలను, అనే ధర్మాలను మన ముందు దైవం ఉంచారు. ఆ ఒక వ్యక్తి సమాజంలో భాగము, సమాజము వ్యక్తులతో నిర్మాణం అవుతుంది కాబట్టి దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మానవుల్ని ఆదర్శవంతంగా జీవించడానికి, ఆదర్శవంతంగా జీవనాన్ని కొనసాగించడానికి మానవులందరూ ఇరుగు పొరుగు వారు కూడా అందులో భాగం కాబట్టి ఇరుగు పొరుగు వారితో వారి యొక్క సంబంధాలు బాగుండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని, 10 రోజుల ఉద్యమాన్ని భారతదేశం నలుమూలలంతటా దీన్ని నిర్వహించడము జరుగుతుంది. గతంలో చూసినట్లయితే ఈ ఉద్యమాన్ని ఎందుకు ప్రారంభించాల్సి వచ్చింది, మరి ఈ ఉద్యమం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి అనే విషయాన్ని చూసినట్లయితే మొట్టమొదట దైవం దీన్ని ఆదేశించాడు, ఇరుగు పొరుగు వారు శాంతియుతంగా ఆదర్శంగా ఉండాలి. అదే వాటిని, ఆ యొక్క ఆదర్శాలను మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం కూడా నొక్కి వక్కాడించి మానవులకి, ముఖ్యంగా ముస్లింలకు దాని యొక్క కొన్ని ఉపదేశాలను, ఆదేశాన్ని సమాజ నిర్మాణం కొరకు, ఆదర్శ సమాజ నిర్మాణం కొరకు ఆదేశించారు. ఈ ఆధారంగా, ఈ బోధనల ఆధారంగా ఒక శాంతియుత సమాజం అనేది ఏర్పాటు జరిగింది. ఆ ఏర్పాటు జరిగిన సమాజాన్ని కొనసాగించడానికి సమాజంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీని కొరకు పాటించారు, ఆచరించారు, ఇతరులను ఆచరించమని ఆదేశించారు కూడా. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇలా మనము దీన్ని జరుపుకోవాల్సి వచ్చింది అని అంటే సమాజం యొక్క ప్రస్తుత సమాజం అనేది స్వార్థయుతంగా జీవించడం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ప్రైవసీ పేరుతో ఎక్కువగా చాలా మందితో కలిసి మెలిసి జీవించడం కూడా దూరం అయ్యారు. ఈ కాలంలో మనిషి వ్యక్తిగతంగా, ఇండివిజువల్ గా తనంతట తానే జీవించాలి, నేను బాగుపడాలి అనే ఉద్దేశంలోనే ఉన్నాడు. కానీ తన ఇరుగు పొరుగు వాడు ఎలా ఉన్నాడు, ఎలా జీవిస్తున్నాడు, అతని కష్టసుఖాలు ఎలా ఉన్నాయి, అతడు ఏ విధంగా జీవిస్తా ఉన్నాడు అనే అంశాల పట్ల దూరం అవుతున్నాడు. దాని పర్యవసానమే
మానవుల్లో కానీ సమాజంలో కానీ అలజడి వైషమ్యాలు ఒకరికొకరు ద్వేషించుకోవడము ఒకరికొకరు సహకరించుకునే భావం అనేది లోపించడం జరిగింది. అయితే దీన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేయడానికి మహాప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఏమన్నారు అంటే, తన పొరుగువాడు ఆకలిగా ఉండి అతను వర్ణించినట్లయితే అక్కడ ఉన్న ఒక విశ్వాసి కూడా అతడు విశ్వాసి కాజాలడు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇరుగు పొరుగు వారు అని అంటే ఇరుగు పొరుగుల్లో ఒక ముస్లిమే కాదు, అక్కడ ఒక హిందూ కూడా ఉండవచ్చు, ఒక క్రైస్తవుడు ఉండవచ్చు, ఒక నిమ్న జాతికి చెందిన వాడు ఉండవచ్చు, ఉన్నత జాతికి చెందిన వాడు ఉండవచ్చు. ఇక్కడ కూడా తారతమ్యాలు లేకుండా మానవులందరికీ ఆదేశం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అక్కడ ఇంకేం చెప్పబడింది అంటే, ఒక వ్యక్తి తన ఎరుగులో ఉన్న వ్యక్తి కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు, అతను దుఃఖంలో ఉన్నప్పుడు మనం కూడా అతనికి సహాయ సహకారాలు అందచేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ బోధనలు అనేవి చాలా వివరంగా వివరించడం జరిగింది. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమాజంలో కూడా కొరబడినందున దాన్ని మళ్ళీ మన సమాజంలో పెంపొందించాలి. ఆ పెంపొందించడం ద్వారా ఒక ఉత్తమ ఆదర్శ సమాజం ఏర్పడాలి. ఆ ఉత్తమ ఆదర్శ సమాజం ద్వారా భారతదేశం యొక్క సమాజ నిర్మాణం జరగాలి. ఆ సమాజంలో ఎలాంటి వైషమ్యాలు విద్వేషాలు ఒకరికొకరు అసహించుకోవడము, ఒకరు తక్కువ ఒకరు ఎక్కువ తారతమ్యాలు లేకుండా ఒక ప్రశాంతయుతమైన సమాజాన్ని దేశాన్ని నిర్మించాలనే ఉద్దేశంతో జమాతే ఇస్లామీ ఈ నవంబర్ 21 నుంచి నవంబర్ 30 వరకు ఈ ఉద్యమాన్ని నడుపుతున్నది. ఈ ఉద్యమంలో ప్రతి ఒక్కరిని పాల్పంచుకోవడానికి కొరకు, ప్రతి ఒక్కరితో కలుసుకోవడానికి యువకులను స్త్రీలను మరి అందరినీ కూడా ఉత్తేజపరుస్తూ ఒక మంచి సమాజ నిర్మాణం కొరకు మనమంతు బాధ్యతగా మనమందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని నిర్వర్తించడం జరిగింది. మేము ఈ సమావేశంలో విచ్చేసిన పాత్రికేయులు మరి ఛానల్ వాళ్ళని మేము కోరేది ఒకటే, ఈ ఉత్తమైన సమాజ నిర్మాణం కొరకు, ఆదర్శ సమాజ నిర్మాణం కొరకు ఏవైతే బోధనలు ఏవైతే కార్యక్రమాలు జమాతే ఇస్లామీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్నాయో వాటిని మీరందరూ సమాజం వరకు చేరవేయడానికి మీ వంతు సహకారం మాకు అందించాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం కల్పించిన సృష్టికర్తకి మరి మీ అందరికీ జమాతే ఇస్లామీ యొక్క సంస్థను కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటూ